Misfortune in his construction work, Emanuel Nobel was forced into bankruptcy. The same year, Alfred Nobel was born. He therefore left Stockholm with his family to start a new career in Russia. To support her family, Alfred's mother started a grocery store which provided a modest income in Russia. His father started a workshop which provided equipment and mines for the Russian army. निर्माण कार्य में दुर्भाग्य के कारण इमैनुअल नोबल को दिवालियापन में मजबूर किया गया था कि उसी वर्ष अल्फ्रेड नोबल का जन्म हुआ था। इसलिए उन्होंने रूस में एक नया करियर शुरू करने के लिए स्टॉकहोम को अपने परिवार के साथ छोड़ दिया। अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अल्फ्रेड ने एक किराने की दुकान शुरू की जो मामूली आय प्रदान करती थी। रूस में उनके पिता ने एक कार्यशाला शुरुआत की जो रूसी सेना के लिए उपकरण और खदानें प्रदान करती थी। Successful in his industrial and business ventures, Emanuel Nobel was able to bring his family to St. Petersburg in 1842. There his sons were given a first-class education by private teachers. The training included natural science, languages and literature. By the age of 17, Alfred Nobel was fluent in Swedish, Russian, French, English and German. अपने औद्योगिक और व्यावसायिक उपकरणों में सफल इमैनुअल नोबल 1842 में अपने परिवार को सेंट पीटर्सबर्ग में लाने में सक्षम हुए थे। वहां उनके बेटों को निजी शिक्षकों द्वारा प्रथम श्रेणी की शिक्षा दी गई थी। परीक्षण में प्राकृतिक विज्ञान, भाषा और साहित्य शामिल थे। 17 साल की उम्र तक अल्फ्रेड नोबल स्वीडिश, रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन में धारा प्रवाह थे। His primary interests were in English literature and poetry as well as in chemistry and physics. Alfred's father disliked Alfred's interest in poetry and found his son an introvert. He sent him abroad for further studies. While working in a laboratory, he became very interested in an explosive material, nitroglycerin, and thought of how it could be used effectively for construction purpose. उनकी प्राथमिक रुचि अंग्रेजी साहित्य और कविता के साथ साथ रसायन विज्ञान और भौतिक में भी थी। अल्फ्रेड के पिता ने कविता में अल्फ्रेड की रुचि को नापसंद किया और अपने बेटे को पाया एक अंतर्मुखी। उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया गया। एक प्रयोगशाला में काम करते समय वह एक विस्फोटक सामग्री नाइट्रोग्लिसरीन में बहुत रुचि रखते थे और यह सोचते थे कि इसके उपयोग कैसे किया जाए और इसके निर्माण का उद्देश्य के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। In a few years, Alfred joined his family enterprise, which was booming because of its deliveries of the Russian army. As the war ended and conditions changed, Emanuel Nobel was again forced into bankruptcy. He left for his hometown, Stockholm. कुछ वर्षों में अल्फ्रेड अपने परिवार के उद्यम में शामिल हो गए, जो रूसी सेना को अपनी डिलीवरी के कारण फल फूल रहा था। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ और स्थितियां बदली, इमैनुअल नोबेल को फिर से दिवालिया होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह अपने गृहनगर स्टॉकहोम के लिए रवाना हो गए। Alfred was still working on developing nitroglycerin as an explosive. Several explosions included one 1864 in which his brother Emil and several other persons were killed, convinced the authorities that nitroglycerin production was extremely dangerous. They forbade further experimentation with nitroglycerin within the Stockholm city limits, and Alfred Nobel had to move his experimentation to Lake Mälaren. Alfred started producing the dynamite, which was solid nitroglycerin shaped in tubes, to make the process of drilling very easy. In 1867, he patented his invention. It reduced the cost of blasting rocks drastically. By 1865, Alfred was exporting nitroglycerin explosive to other countries in Europe, America and Australia. अल्फ्रेड अभी भी नाइट्रोग्लिसरीन और को विस्फोट के रूप में विकसित करने पर काम कर रहे थे।
एक दिन 1864 सहित कई विस्फोट जिसमें उनके भाई एमिल और कई अन्य लोग मारे गए थे। अधिकारियों को आश्वस्त किया गया कि नाइट्रोग्लिसरीन उत्पादन अधिक खतरनाक था। उन्होंने स्टॉकहोम शहर की सीमाओं के भीतर नाइट्रोग्लिसरीन के साथ आगे प्रयोग करने से मना कर दिया और अल्फ्रेड नोबल को अपने प्रयोग को मालरेन झील में स्थानांतरित करना पड़ा। अल्फ्रेड ने डायनामाइट का उत्पादन शुरू किया जो ठोस नाइट्रोग्लिसरीन था, जिसे ट्यूबों में आकार दिया गया ताकि ड्रिलिंग की प्रक्रिया बहुत आसान हो सके। 1867 में उन्होंने अपने आविष्कार को प्रैक्टिकलिंग कराया, जिसे चट्टानों को नष्ट करने की लागत में बहुत कम कर दिया। 1865 तक अल्फ्रेड यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अन्य देशों को नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक निर्यात कर रहा था।